الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، آج کی جمعہ کی نشست میں شب برات کے عنوان پر چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ کل کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی شب برات کی مقدس اور رحمت معاب رات ہے۔ اس سلسلہ کے اندر چند حدیثیں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم اس رات کی عظمتیں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس طرح کی راتیں اس امت کو عطا فرمائی کہ یہ امت کم وقت میں زیادہ اجر حاصل کرے، زیادہ ثواب حاصل کرے، اللہ وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ سمجھے درمیان میں پہنچ چکا ہے۔ آج 14 شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے میں رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادات کو مزید تیز کر دیتے۔ نفلی روزوں کی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کثرت فرمایا کرتے تھے، اور جب اللہ کے حبیب سے سوال کیا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقیہ مہینے بھی ہیں شعبان کے علاوہ رمضان کو چھوڑ کر، لیکن کسی مہینے میں آپ اتنا اہتمام روزوں کا نہیں کرتے جتنا اہتمام آپ شعبان کے اندر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے مختلف مواقع پر مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلے اس پر ہم 2-3 حدیثیں سماعت کریں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، اور میں روزے کیوں رکھتا ہوں؟ وَهُوَ شَعْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس مہینے کے اندر سال بھر کے اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں۔
رجسٹر کلوز ہوتے ہیں، پورے سال کے اعمال نامے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، نئے رجسٹرڈ نئے اعمال نامے وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر، خصوصاً ایک رات کے اندر، اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اٹھائے جا رہے ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں، پورا مہینہ بعض اوقات اللہ کے حبیب شعبان کے اندر روزے کی حالت کے اندر گزار دیتے، اور پھر وجہ بیان فرماتے چونکہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو اور میرے سال کا جو آخری عمل ہو وہ روزے کی حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک سوال ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ محبوب سب مہینوں میں آپ کو شعبان کے روزے زیادہ پیارے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس موقع پر رسول اللہ نے ایک اور جواب ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے سال بھر میں مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ موت کوئی اچانک فیصلہ نہیں، ہمارے لیے تو اچانک ہے لیکن یہ طے شدہ ہے، ایک وقت مقررہ ہے۔ جس بندے نے دنیا کے اندر جتنی سانسیں لینی ہیں، جب وہ سانسیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اسرائیل کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر اس بندے کو اٹھانا ہے۔ کتنے ہمارے ساتھ گزشتہ سال میں تھے لیکن آج وہ مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، کچھ بیمار ہو کر گئے، کچھ صحت مند چلے گئے، کوئی بوڑھے چلے گئے، کوئی جوان چلے گئے، کوئی مرد، کوئی عورتیں، مختلف جن کی باریاں لگی تھی وہ اللہ کے دربار کے اندر پہنچ گئے، اور ابھی بھی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے دربار میں کل کی مقدس رات آنے سے پہلے ہی پہنچ جانا ہے، کیونکہ یہ سانسیں امانت ہیں اور یہ پردہ ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ مخفی چیز ہے، اور مخفی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ بندہ نہ ڈر نہ ہو جائے، بے فکر نہ ہو جائے، موت کو یاد رکھے اور اللہ کے دربار میں رجوع کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ کے دربار میں جھکتا رہے، عاجز بن کر زندگی بسر کرتا رہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ سال بھر کے مرنے والوں کے نام اس مہینے کے اندر لکھ کر اسرائیل کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں جب مجھ محمد کا نام لکھ کر اسرائیل کے حوالے کیا جائے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حالانکہ یہ تعلیم امت کی خاطر تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل اچانک دنیا سے نہیں گئے بلکہ پہلے حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، جبرائیل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیں، اور اگر ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ تو رسول اللہ نے بڑے مجمع کے اندر کہا تھا کہ مجھے رب نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے، تو میں نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند فرما لیا، چونکہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا، اب میں اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان رحمت پر روح مبارک لینے کے لیے حضرت اسرائیل آئے تو ڈائریکٹ نہیں آگے تھے، اچانک نہیں آگے تھے، بلکہ باقاعدہ دروازے پر انہوں نے دستک دی تھی۔ اور ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کا دورہ پڑا ہوا تھا، ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم نے واپس بھجوا دیا، باہر آ کے اسرائیل نے یہ باقاعدہ کہا تھا کہ اے نبوت اور رسالت کے گھر والوں، میں ایک دیہاتی ہوں، رسول اللہ سے ملاقات کا میرا ارادہ ہے، میری ملاقات کروا دو۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ آقا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے تھوڑا وقفہ لگایا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، حضرت اسرائیل دیہاتی بن کر دروازے پہ دستک دے رہا ہے، حالانکہ اسرائیل کو یہ ضروری ہے ہی نہیں، اسے حاجت ہے ہی نہیں، تم کمرے بند کر لو، تم لوہے کے سلاخوں کے پیچھے چھپ جاؤ، ہزارہ پردوں کے اندر گم ہو جاؤ۔ حضرت اسرائیل کو اللہ نے وہاں پہنچنے کی بھی طاقت عطا فرمائی، اس کے لیے کوئی کھڑکی دروازے کا کھلا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے طاقت حضرت اسرائیل کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ کیوں آج چوکیدار بن کر در مصطفیٰ پہ کھڑا ہے، ڈائریکٹ اندر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ باقی لوگوں کا اللہ کے دربار میں پہنچنا اور ہے اور اللہ کے محبوب کا رب کے دربار میں پہنچنا اور ہے، بغیر اجازت نہیں آ رہا۔ پھر دوسری مرتبہ
उम्म उल मोमिनीन कहती हैं हमने वापस भिजवा दिया। अब जब तीसरी मरतबा थोड़ा वक्फा लगा कि हज़रत इज़राइल दोबारा आए तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, चूंकि नबी है और नबी के लिए पर्दा कोई माना नहीं रखता कि बाहर कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, चूंकि नबूवत जिस सीने के अंदर होती है अल्लाह उसे गैब के सारे खजाने अता फरमा देता है। मेरे महबूब ने कहा कि ए आयशा, ए फातिमा, जानती हो कौन है? हुजूर देहाती है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। फरमाया ये देहाती नहीं है, ये वो है जो बाप को बेटी से जुदा कर देता है, ये वो है जो भाई को भाई से जुदा कर देता है, ये वो है जो करीबी रिश्तों को दूसरों से जुदा करके कब्रिस्तान आबाद करता है और हमारी आबादियों को वीरान करता है। ये इज़राइल है, ये इजाजत ले रहा है मेरे दरबार में आने की। दरवाजा खोलो, इसे अंदर आने दो। मैंने कहना ये चाह के ये रसूलुल्लाह का कलाम ये मेरे लिए था, आपके लिए था कि हमें फिक्र हो कि जिस वक्त हमारी मौत के फैसले हो रहे हैं, हमारा नाम रजिस्टर में लिख कर फरिश्ते के हवाले किया जा रहा है, क्या हम उस वक्त किसी हंगामे के अंदर तो नहीं, हम किसी मेले के अंदर तो नहीं, हम रब का दरबार बुला के तो नहीं बैठे हुए, हम गफलत के अंदर तो नहीं, हमें झुक जाना चाहिए, रजू करना चाहिए। हो सकता है हमारा नाम उस सहीफे में लिखकर रब्बुल आलमीन के दरबार के हवाले कर दिया जाए। बारकफ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया मैं रोज़ों की कसरत इसलिए करता हूँ, नाम मरने वालों का लिख कर फरिश्तों के हवाले किया जा सकता है। हो सकता है मेरा किया जाए, तो मैं चाहता हूँ मैं रोज़े की हालत के अंदर हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कहते हैं, वकाना अहब्बुस सौमी इलैहि फी शाबान, अल्लाह के हबीब को शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा पसंद था। यानी नफली रोज़े अल्लाह के हबीब वो शाबान के महीने के अंदर रखते थे। ये इबादत का महीना है, ये ज़ौक़ और शौक़ का महीना है, ये रहमत वाले महीने यानी रमज़ान के इस्तकबाल का महीना है। जिसकी ज़िंदगी के अंदर सजदा नहीं है वो ये इंतज़ार ना करे कि रमज़ान आए तो मैं मस्जिद जाऊँगा, वो आ जाए। हो सकता है इस रात में उसका फैसला हो चुका हो और रमज़ान की उसे तौफीक की नसीब ना हो, या पिछली दफ़ा फैसला हो गया था ये रात भी वो ना पा सके। हम जिस इंतज़ार के अंदर हैं हमें नहीं बताया जाएगा, हम जिस चीज़ की वजह से अपनी इबादत को डिले कर रहे हैं, कल कर लूँगा, 2 महीने बाद कर लूँगा, मैं ज़रा फारिग हो जाऊँ कर लूँगा, वो मौका हमें नहीं दिया जाएगा। हमें पलटना होगा, वापस होना आना होगा। अल्लाह की रहमत वो इस्तकबाल कर रही है और अल्लाह की रहमत आवाजें लगा रही है। ऐ रूठे हुए बंदो, ऐ मेरा दर्द छोड़ जाने वालों, ऐ बगावत करने वालों, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद मुझे छोड़ जाने वालों, आओ पलटा वापस। तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं 10 रहमत के कदमों से तुम्हारा इस्तकबाल फरमाऊंगा। आज सदाएं बार बार आ रही हैं क्योंकि करीब है वो रहमत मुआब रात, जिस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के साथ बहुत मेहरबानी वाला सलूक करना है। मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम ने इस रात के मुतल्लिक ये कलाम इरशाद फरमाया, कल का दिन गुजारने के बाद जो रात आएगी शब्बे बरात। अल्लाह के हबीब का कलाम मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, यत्तलिउल्लाहु इला जमी खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फयग़फ़िरु लिजमी खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुसाहिन। अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाता है। वो अपनी शान के साथ आसमान दुनिया पर नज़ूले अजलाल फरमाता है और अपने बंदों की तरफ देखता है, मखलूक की तरफ नजरे रहमत फरमाता है। और फिर मेरे महबूब ने दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाया कि जब अल्लाह अपनी मखलूक की तरफ नजरे रहमत फरमाता है तो कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। ये उसकी रहमत के फैसले कल की रात को होने हैं। हम उसके दरबार में दुआ करते हैं कि मालिक अपनी रहमत की निगाह के अंदर हमें भी रखना। अगर तेरी एक रहमत की निगाह बढ़ गई, हमारे गुनाह को इतने ज्यादा तो नहीं, तेरी रहमत से बड़े तो नहीं, हमारी खताएं को इतनी बड़ी तो नहीं कि तेरी रहमत से बड़ी हो जाए। अल्लाह फजल करना, अपनी रहमत की एक निगाह के जरिए हमारी जिंदगी की खताओं से दरगुजर कर देना। इसलिए कि इंसान खता का पुतला, इससे भूल हो जाती है, इससे गलती हो जाती है, ये सीधी राह से भटक जाता है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत मुआब लम्हे इसलिए अता फरमाता है, पलटाओ वापस, रुजू कर लो, आओ मेरे दरबार के अंदर, मैं तुम्हें
बख्शिश का सामान देने के लिए तैयार हूँ। कितनी रहमत मुआब रात है कल की। मेरे महबूब कहते हैं जैसे ही सूरज गरूब होगा तो आसमान बाला पर जब अल्लाह नज़ूल अजलाल फरमाएगा तो उसके दरबार से एक सदा आना शुरू होगी। वो सदा के लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ताला के दरबार से एक मुनादी निदा करेगा, क्या? अला मिन मुस्तगफिर। ज़मीन की तरफ रब की निगाह रहमत लगी है, सदाए आसमान बाला से आ रही। अला मिन मुस्तगफिर, है कोई बख्शिश चाहने वाला? है कोई माफी मांगने वाला? है कोई वापस आने वाला? मैं कहता हूं जिसके हम मुजरम थे आज वो रहमत की दुकान सजा के खुद बैठा है, खुद आवाजें लगा रहा है। चाहिए था हम पलट के जाते, चाहिए था हम रजू करते, लेकिन वो आवाज दे रहा है, अला मिन मुस्तगफिर। है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला? मेरे महबूब कहते हैं, अल्लाह कहता है फ़अग़फ़िरु लहू, वो आए, वो इस्तिग़फ़ार करे, मैं उसे माफ़ फरमा दूंगा। वो जिसने माफ़ी देनी है वो खुद ऐलान कर, मैं कौन होता हूँ पहरेदार बनने वाला, मैं कौन होता हूँ मुंशी बनने वाला, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि फलां को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो खुद ऐलान जो कर रहा है, ये रहमत मुआब रात आ गई, ये करम वाली रात आ गई। आओ मेरा दर छोड़ जाने वालों, आओ मेरे दर से बगावत करने वालों, आओ मुझे पुष्ट ले जाने वालों, मेरी नेमतें इस्तेमाल करने के बाद गर्राने वालों, वापिस पलट आओ। अल्लाह कहता है तुम माफी मांगोगे, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। एक दूसरा ऐलान होगा, ये बार बार ऐलान चलेगा, पूरी रात ऐलान चलेगा। और मैं कहता हूँ कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर अगर आमिना का लाल ये पर्दा ना उठाता तो हमें कैसे पता चलता कि अल्लाह सदा लगा रहा है, रहमत मुआब सदाएं आसमान पर चल रही हैं। हम तो पहले ही गाफिल थे, मजीद गाफिल हो जाते। हमें क्या पता चलता कि रब्बुल आलमीन बख्शना चाहता है। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह की जुबान पर जिन्होंने सारे पर्दे उठा के बताया, गफलत में ना गुजारना, पूरी रात रब के दरबार से बख्शिश की सदाएं आती रहती, पूरी रात। ये वो सदा है जो हर रात पिछले पैर एक मखसूस टाइम के लिए आती है। हर रात पिछले पैर, रात का जो आखिरी हिस्सा होता है जहां मखलूक खुदा थक हार का सोई होती है। हम जैसे लोग गफलत की नींद सोए होते हैं, जब उठना चाहिए था हम सो रहे थे, जब सदा आ रही थी हम गाफिल थे, जब रब बख्शिश की सदाएं दे रहा था हमारा रजू ही नहीं था, हमने कभी सारी नहीं रखा अल्लाह के दरबार के अंदर। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से जो सदा हर रात पिछले पैर आती है, जिसके मुतल्लिक मियाँ साहब ने कहा था पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगने वाले कारण खुला है दरवाजा। आज सदा पिछली राती नहीं है बल्कि पूरी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा। मगरिब से लेकर सुबह तक पूरी रात तसलसल से सदा आएगी, आओ भूले हुए आ जाओ, भटके हुए आ जाओ, मेरा दर छोड़ जाने वाले आ जाओ, सीधे रास्ते से गुमराह हो जाने वालों आओ, आओ वापिस पलटो, तो माफी मांगोगे मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। और दूसरी सदा आती है, रिस्क ने दौरे हाजिर के अंदर बंदों को परेशान किया हुआ है, रिस्क की खातर वो रज़्ज़ाक़ को बुला बैठे हैं, रिस्क की खातर वो अपने मालिक से बगावत कर बैठे हैं। कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, कैसे झुकें, कैसे आए, दुकान पे जाना है, दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर काम है, दीगर बेशुमार मसरूफियात, टाइम ही नहीं है, हम कैसे सर रखें। वो अल्लाह कल की रात के अंदर उसके दरबार से एक सदा और आएगी। पहले उसने कुरान में बता दिया है परेशान ना होना, मैंने किसी को भूखा नहीं मरने देना। वजह क्या है? रिस्क की किफालत मेरे जिम्मा है, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क अता फरमाऊंगा। तुम तो मेरे बंदे हो, तुम तो मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें क्या भूखा मरने दूंगा। लेकिन ये सदा अल्लाह के दरबार से कल की रात और पूरी रात लगेगी। सदा क्या है? अला मिन मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़ूहु, अल्लाह फरमाएगा है कोई रिस्क का तलाश करने वाला, वो आए रिस्क का सवाल करे, मैं सारे खजाने खोल दूंगा, मैं रिस्क अता फरमाऊंगा। जिसका रिस्क तंग है, जो कारोबार से परेशान है, जिसके हालात मंदे हैं। और हालात मंदे क्यों होते हैं? बारहा मैंने अर्ज किया, जब अल्लाह का दर छोड़ जाओ हालात मंदे हो जाते हैं, रिस्क तंग हो जाते हैं, परेशानियों में इजाफा हो जाता है, बलाएं घेर लेती हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा बेसकून रहता है। चाहते हो हालात अपनी जगह पे आ जाएं, सुकून की दौलत मिल जाए, रिस्क वसी हो जाए, जितना है उतने में गुजारा हो जाए,
आओ अपना सर अल्लाह के दरबार में रखो, वो खुद दावत जो दे रहा है, पैगाम मोहब्बत जो दे रहा है, मैं देने वाला हूं, मेरे दरबार में आओगे मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा फरमा दूंगा। अच्छा, बंदों की जरूरत फकत बख्शिश ही तो नहीं, फकत रिज़्क की तो नहीं, बेशुमार लोगों की बेशुमार जरूरतें हैं। किसी को औलाद चाहिए, कोई बीवी की वजह से परेशान, कोई बच्चों की वजह से परेशान, कोई बीवी है तो शोर की वजह से परेशान, लड़ाई झगड़े हैं, फैमिलियों के अंदर क्राइसिस है, रिश्तेदारियां टूटी हुई हैं, इस तमाम के बेशुमार मामलात हैं। बंदा मांगना चाहता है, लेना चाहता है। अब रब्बे कायनात की तरफ से एक तीसरी सदा आती है जिसमें मेरी हर जरूरत है, जिसमें मेरी हर हाजत है, जिसमें मेरा हर सवाल है, जिसमें मेरी हर बिमता है। क्योंकि मालिक जानता था सिर्फ बख्शिश ही तो नहीं चाहिए इन्हें, अल्लाह जानता था सिर्फ रोटी तो नहीं चाहिए इन्हें, बेशुमार सवाल हैं, बेशुमार हाजतें हैं, ये किसी बंदे के सामने भी बयान नहीं कर सकते। तीसरा, रब के दरबार से एक पैगाम आएगा, क्या? हल मिन साइलिन, है कोई सवाली? कोई सवाली, कोई सवाल लेके आ जाए, कोई हाजत मंद अपनी कोई भी हाजत लेके आए। किसी को बख्शिश चाहिए, किसी को कब्र की बेहतरी चाहिए, कोई हशर में सुरखरू होना चाहता है, कोई ईमान की मौत मरना चाहता है, कोई किसी की मोहताजी से बचना चाहता है, कुछ भी चाहता है, हल मिन साइलिन, आए वो सवाल करे। अल्लाह कहता है मैं उसकी झोली को खैर से पुर फरमा दूंगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता फरमाऊंगा। बहुत रहमत माब रात है और बहुत करम वाली रात है, गफलत के अंदर गुजारने वाली नहीं। ये तो एक शैतान का बना बनाया मंसूबा है, वो इस तरह की मुकद्दस रातों को मेलों के अंदर गुजारने का ज़हन देता है। जैसे एक सोची समझी तहरीक के तहत इस रात की इबादत को बर्बाद करने के लिए ये जो आतिशबाजी है इस रात के अंदर मुतारफ करवाई गई। मेरे महबूब करीम इस्लाम के मुबारक दौर में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। इस रात में क्या हमारी हर खुशी के अंदर आतिशबाजी को शामिल कर दिया गया। गोया ये आतिशबाजी वाली रात नहीं है, ये आग लगाने वाली रात नहीं है, ये तो दोज़ख की आग ठंडी करवाने वाली रात है, ये अल्लाह के दरबार से माफिया मांगने वाली रात। यही वजह है हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके जुमला इरशाद फरमाया करते थे, आप फरमाते थे बेशुमार मकानात की तामीरात का काम मुकम्मल होने वाला होता है, पर मालिके मकान की मौत का वक्त आ चुका होता है। वो यार ठेकेदार जी जल्दी करो, शिफ्टिंग करनी है, ये काम रहता है, ये काम रहता है। बेशुमार तामीराती काम आखिरी मराज में होते हैं, पर मालिक उसकी मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका होता है। और जिसके नाम का कपड़ा तैयार होके मार्केट में आ चुका है, यह कफन इसने पहनना है, और वो कफन पहनने वाला बाजारों के अंदर खुशियों के अंदर मस्त होता है, वो गाफिल फिर रहा होता है, वो रब का दरबार छोड़ के भाग रहा होता है, और उधर से सदा आ रही है मैंने मख्फी रखा हुआ है, मैंने छुपाया हुआ है, मैं कब तुम्हें उठा लूं। मैं ये कहता हूं बंदे को कम अज कम इतना तो होना चाहिए ना, अगर अचानक रब बुला ले तो शर्म ना है, अगर अचानक अल्लाह बुला ले तो हया ना आए, नजर झुक ना जाए, बंदा इतनी तो जिंदगी बसर करे, कुछ इतना तो राब्ता अपने परवरदिगार के साथ रखे। और जिस सोच के अंदर हम पड़े हैं ना, अभी वक्त बहुत है, अभी वक्त बहुत है, देख लेंगे, कर लेंगे, आ जाएंगे, वक्त नहीं है, वक्त गुजर गया, कुछ नहीं है। जिसके 50 साल हैं वो देखे, उसके पास तो गिनती के साल रह गए, और जो 60 साल गुजारने के बाद भी पूरी उम्मीद है मेरे पास बड़ा टाइम, कुछ भी नहीं रह गया, अभी तो घंटी बजने वाली है। और कितने कासद ऐसे हैं जो हमारे वजूदों में आ चुके, किसी के बाल सफेद हैं तो किसी की नजर कमजोर, किसी के सीने का जोर खत्म हो गया तो किसी को खांसी नहीं जान छोड़ती, किसी को कोई मूजी मर्ज लग चुका है जो उसकी मौत का एक खामोश पैगाम है। अन करीब संदेशा आएगा, तुम्हें तुम्हारा रब बुला रहा है, तुम्हें तुम्हारा। और वो वक्त बड़ा सख्त है, वक्त बड़ा सख्त है जब हमारे प्यारे हमें कफन के अंदर लपेट के कब्र के हवाले कर देंगे, नहीं जाता कोई साथ, लोग रोते हैं पीछे, तड़पते हैं, हाथ मारते हैं सीनों पर, कब्र में कोई साथ नहीं जाता। वो कफन बांध कर कब्र के हवाले करके वापस चले आते हैं। फिर मैं हूं, फिर मेरा अमल है, फिर आप हैं और आपकी कमाई है। उस दिन से पहले जब हमारे प्यारे हमें तन्हा कब्रिस्तान के अंधेरे में छोड़ के पलट आए, आइए उस जगह के लिए कुछ तैयारी कर लीजिए,
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर साल की तरह इस रात को हम अल्लाह के दरबार में इबादत के अंदर गुजारेंगे। काफ़ी सालों से पता है आपको मामूल है, ये रात सोने वाला, सोता तो बंदा सारी ज़िंदगी है, सोता तो बंदा सारी ज़िंदगी है, हल्का सा कोई बंदे को दर्द हो जाए ना, हल्का सा, वो भी बंदे की पूरी रात नींद छीन लेता है। बेटा हॉस्पिटल पड़ा हो, मैं देखूं बाप कैसे सो सकता है, बेटी जनाब हॉस्पिटल में हो, मैं देखूंगा माँ कैसे सो सकती है, नहीं सोता। ये रिश्तों का दर्द हमें सोने नहीं देता, तो क्या अपने गुनाहों का कोई दर्द नहीं है? क्या दोज़ख का कोई खौफ नहीं है? इस रात को अल्लाह के दरबार में जाग कर गुजारने की कोशिश करें, जाग कर गुजारने। सोने वाली रातें बड़ी पड़ी हैं, सारी ज़िंदगी सोना ही सोना है। ये एक रात, कल का दिन आप गुजारेंगे हफ्ते का, तो उसके बाद जो रात आएगी शाम को, ये मुकद्दस रात शब बारात है। पूरी रात इबादत की है, पूरी रात इबादत की है, रहमत मुआबी की है। मैं आज के दिन का एक वजीफ़ा पढ़ना चाहता हूँ। आज मुकद्दस और मुबारक ये जुमा है ना, वैसे जुमा सैयदुल अयाम है। जुमा आज 13 शाबान है या 14 है? 13 है। ये जो वजीफ़ा मैं बताने लगा हूँ ये 14 शाबान के लिए है, कल के दिन के लिए। इस वजीफ़े की जज़ा बहुत बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूँकि रहमत लेने का हुक्म अता फरमाया है, तो छोटे छोटे कामों के ज़रिए बहुत बड़ी रहमत बंदा ले सकता है। ये वजीफ़ा क्या है? 14 शाबान को सूरज गरूब होने से पहले 40 मरतबा ये कलाम पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहुत आसान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और उसके बाद 100 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। पूछिए इसकी जज़ा क्या है? इसकी जज़ा ये है, जो बंदा 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 14 शाबान को सूरज गरूब होने से पहले पढ़ लेता है, फिर 100 बार दुरूद पढ़ लेता है, अल्लाह उस बंदे के 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। थोड़ा काम करके बहुत बड़ी जज़ा है। वैसे इस रात के अंदर एक एक नफल की बड़ी कीमत है, एक एक आयत की तिलावत की बड़ी कीमत है, सलातुत तस्बीह की बड़ी कीमत है।